Hello, good evening, guys. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are at match number 51 at the iconic Wankhede Stadium. And surprise, surprise, Kolkata Knight Riders has beaten Mumbai Indians convincingly by 24 runs after 12 years. Um, Ankit, I'll start with you. Anything about the game that you like to comment on? यार गेम जब स्टार्ट हुआ आई थिंक मेरे को लगा कि मुंबई कमांड में है. बट द वे Hmm. मनीष पांडे एंड द अय्यर हैज प्लेड द इनिंग, they were Hmm. not looking forward to score the boundaries. They were just rotating the strike, and that was a very brilliant move by KKR to sending Manish Pandey, because उनके और कोई था नहीं. ही इज वेरी मैच्योर्ड प्लेयर. मनीष पांडे को पता है उनका रोल क्या है, इसलिए आई थिंक वो बहुत अच्छा खेला. उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की एंड दे अब स्कोर अच्छा है. उन्होंने रिस्पेक्टेबल जगह Hmm. पे लाके खड़ा कर दिया, विच इज 165. ठीक है यार, 165 इनफ नहीं है एट वानखेड़े स्टेडियम, बट जो भी था उन्होंने अच्छा किया. एक बॉलर को फाइट करने का मौका दे दिया कि हाँ भाई, हमने इतना स्कोर किया है, हम थोड़ा फाइट दे सकते हैं. एंड द रिजल्ट हमारे सबके सामने है. क्या किया फिर उन्होंने एज बॉलिंग में. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है। अगर आप पावर प्ले में 3 विकेट ले लेते हो किसी भी टीम की पावर प्ले के अंदर या उसके आसपास, तो आपके चांसेस विनिंग के 85 80 70 85% हो जाते हैं। एंड आई थिंक मुंबई ऑलमोस्ट मैनेज टू डू दैट, कृष्णा। Mumbai managed to do that, but I think it was fantastic recovery यार. जैसे जैसे उसने बोला यार, मतलब मनीष पांडे को लेके आना, वेंकटेश अय्यर, and then I think you actually saw a lot of people failing today, with like Rinku Singh, which you don't get to see that often. Russell again, that unfortunate run out. But I think the way KKR bowled and then came back into the game, that is what really stood out for me. ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मतलब मुंबई गेम में था. KKR बिल्कुल गेम में नहीं था. 170 is never going to be a difficult task in today's day and age, जहाँ 250 बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, 220 बन रहे हैं and all of that. So 170 was anyway going to be a cakewalk, especially at Wankhede, and that too when you're bowling first. So chasing definitely would have been very very easy, but I think Mumbai really made a mockery out of their own batting lineup today. I think the kind of shots that they played, they would be very disappointed. I don't know what is happening with Hardik Pandya. He could not really read the ball or the length or the line, that Russell was bowling. Russell bowled tremendously well today. Russell's spell actually today, matlab, was the highlight for me. Not many people. I mean, it's again going to be an unpopular opinion, but I think the way he was bowling today, and of course, then there was Varun Chakrabarti, Vaibhav Arora, and of course, the Sunil Narayan who sort of chipped in. But for me, I think Russell really stood out here. So talking about KKR's batting, I think they were struggling a lot. But then there is this player called Venkatesh Iyer. Okay, and this is what he has to say in the post-match presentation. Like a professional cricketer, I have to be flexible in how I can pace my innings. This is the fourth or the fifth time Manish batted up, but this time he got to bat. It's very important that I take time to rebuild. Initially, I told him it will take time to adjust to the wicket. The ball was holding up, and it was a two-paced wicket. He was guiding me. I tried to be a smarter cricketer. I thought at the situation the team needed me. I'm a huge fan of Dada. Went to ask him about my stance. It was a very fruitful conversation. Yeah, see, I think the reason why Venkatesh Iyer sounds very, very sensible is because whenever he speaks, first of all, he makes a very conscious effort at that. And the second thing, he's highly educated man. I mean, this man has said in multiple interviews that I don't think that I have the same amount of confidence in my cricketing ability as much as I have in my academics. And had it not been for cricket, I would have definitely been in some IIM or IITs, right? And one of the interviews, he said that, he's also going to pursue his PhD. So right now, as we speak, he might be even doing that. And the reason why he does that, is very simple, because it actually keeps him going. When he comes back after a hard day of cricket, or probably, after getting out on a duck, he doesn't really want to think about it and wants to channelize and focus all his energy into academics, and this helps in making smarter decisions, which is also realized by his teammates. Now, this guy actually had to drop out of his CA finals to pursue an MBA, because, of course, CA then would have probably meant that he would have had to, sort of drop out from his cricketing career. After an MBA, gets a job at Deloitte, and did not take it up, but makes his Ranji debut the same year. And this man credits his mother, more than anyone else, because she was the one who actually, sort of encouraged him to go out there and play, you know
and he really downplays his struggle days because he thinks that a lot of people in the domestic circuit actually struggled way more than what he did. He gives a lot of credit to his childhood coach, Mr. Dinesh Sharma, and of course the legendary Chandrakant Pandit during the MP time. And he's a huge fan of Saurav Ganguly, and that's why we saw him going, to Saurav Ganguly to get his stance corrected, and of course for a lot of other things to learn literally from him. But he's also a big fan of Rajnikant. And one of the punchlines from his movies actually he says that resonates really well with his life, which is "Yen vari, tani vari," which means that my way is completely unique and it's completely different. So you might want just to sort of come out there and talk to me, and you might just like me. So yeah, I mean Venkatesh Iyer for me really stood out for the kind of innings that he played. Of course, it's debatable whether he should have probably sacrificed his wicket for Russell. But yeah, I think job done there. Talking about Venkatesh Iyer, Ankit, चंद्रकांत पंडित जो उनके कोच हैं जिन्होंने एमपी को रणजी ट्रॉफी फाइनल जिताया, आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। यार चंद्रकांत पंडित ऐसे ये वो है ना यार, कोच है ना जिन्होंने एमपी को जिताया, मुंबई को जिताया, विदर्भा को जिताया, तीन जगह को जिताया उन्होंने। आई थिंक ही गॉट मोर फ्रीडम जब गंभीर आए केकेआर के सेटअप में। अभी वो बहुत खुल के अपने आई थिंक जो उनके विचार है, विमर्श है, वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जब वो मैकलम के साथ थे, ठीक है, हेड कोच नहीं थे, आई डू अंडरस्टैंड, मैकलम वाज हेड कोच, इयान मॉर्गन कैप्टन थे, वो उनका रोल पता नहीं चल रहा था लोगों को। वो पता है इस साल लोगों को पता चल रहा है मोर अबाउट चंद्रकांत पंडित बिकॉज ऑफ द क्रेडिट गोज टू गौतम गंभीर ऑल्सो। यार वो गौतम गंभीर को हमको क्रेडिट देना चाहिए। प्लेयर्स भी यहाँ तक बोलते हैं, कोच भी यहाँ तक बोलते हैं, गौतम गंभीर किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करता है। अगर चंद्रकांत पंडित ने बोला वी नीड टू गो टू लेफ्ट, सो पीपल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज दे नो कि भाई ये ऐसे कोच है जिनसे हमको रिजल्ट निकल के आया है। तीन जगह का रणजी जिताना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू एनीवन। वो भी बैक टू बैक। कोई बॉलिंग कोच नहीं है, ऐसा किसी को बॉलिंग कोच नहीं रखा है केकेआर ने। चंद्रकांत पंडित ही वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, दे हैव अ बैटिंग कोच अभिषेक नायर, जो ओपी लोग बोलते हैं उनको, ऑसम प्लेयर, बट द क्रेडिट गोज टू चंद्रकांत पंडित एज वेल। सब उनकी तारीफ करते हैं यार, ठीक है, चाहे जैसा वो मतलब शक्ल से गंभीर दिखते हो, गंभीर की तरह, बट दे आर डूइंग समथिंग रियली गुड। So except I think Ashutosh Sharma, everyone is sort of in line with Chandrakant. Ashutosh Sharma, have to be David Wiese, let's take a name. David Wiese ने अपने सबसे पहले डेविड वीजे ने ये वो किया था कि the dressing room atmosphere is very militant and authority, people are frustrated in that. But this year I don't see anything. यार एक आंद्रे रसल ने उसका बचाव भी तो किया। आंद्रे रसल ने बचाव भी तो किया। वो हाँ, नया कोच आता है, आपको अडैप्ट करना पड़ता है, आप क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पे, देयर आर रूल्स, यू कांट। भाई आंद्रे रसल बोल रहा है तो कुछ तो होगा। एंड द रोल आंद्रे रसल को मिल रहा है। आपको जब भी विकेट चाहिए आप आंद्रे रसल को दे दो, इधर ही विल वो जो स्कोर होता है ना वो एकदम स्विंग कर देता है, वो आप ज्यादा रन नहीं बना पाते, ये तो आपको विकेट मिल जाता है। वो प्रेशर सिचुएशन आती है और आपको विकेट मिल जाता है। सो आंद्रे रसल इज डूइंग द सेम थिंग फॉर द केकेआर पास्ट 2 ईयर। कुछ नया नहीं है, बट यस उनके ऊपर फेथ दिखाया जा रहा है आंद्रे रसल के ऊपर बीइंग एज अ बॉलर। मुझे ऐसा भी लगता है ना यार, बिकॉज केकेआर टीम इज एक्चुअली फुल ऑफ कैरेक्टर्स। You look at Shreyas Iyer, you look at Andre Russell, ठीक है, you look at Sunil Narine, you look at Rinku Singh, मतलब हर किसी का मतलब अपना अपना एकदम अलग एक यूनिक पर्सनालिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक मैच कर दे। ठीक है, अगर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक किसी के साथ मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि और 5 लोग भी उसकी तरह है या फिर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक मैच कर जाए। सो इट इज द काइंड ऑफ सेटअप और द कॉम्बिनेशन दैट दे हैव is actually very difficult, to sort of coach or mentor, because at the end of the day, you have about 25 people in your setup, right? You've got a Mitchell Stark, and you've got all these big names, but then you've got to give credit to Chandrakant Pandit. Even before Gambhir, he actually did a very good job. Gambhir तो आया, उसने stabilize करी ship, क्योंकि probably उससे stabilize नहीं हो रही थी। ठीक है, बट चंद्रकांत पंडित ने एक्चुअली अच्छा काम किया यार, बिकॉज इवन इन द लास्ट सीजन केकेआर प्लेड रियली वेल। It's not like and Rinku Singh, we saw the
the emergence of Rinku Singh. We saw Nitish Rana doing Mhm. really well as a captain, and it's very unlucky, for him also, to sort of miss out just because of the fact that you want to try, let's say, a Venkatesh Iyer at the top of the order, or maybe an Ankush Raghuvanshi right now at the top of the order, and hence he's actually missing out. So it is very very unfortunate for him. But I know for a fact that yes, Gambhir would definitely back him क्योंकि नीतीश राणा से पहले वो खेला है उसके साथ, Nitish Rana के साथ, even when he was at the KKR setup. So he definitely likes Nitish Rana. It's just that, he probably was not getting an opportunity right. Might be they have their smart move. They wanted to check their bench as well. नितेश राणा के बारे में सब जानते हैं कि बहुत अच्छा खेलते हैं. Whenever we give him a chance, he will play definitely. पर बेंच He पे will आप score. कैसे चेंज करोगे यार? आप ये भी तो देखो ना, आपके बेंच में आपने कितने ही लोग खिलाए. Now KKR also has followed this strategy of not having chopped and changed, quite a lot. उन्होंने भी almost same ही Yeah. lineup खिलाया, right from the very beginning, right? So वो एक चीज बहुत ज्यादा important है, ये चीज देखो. चेंज इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब लोग अपने प्लेस पे परफॉर्म कर रहे हैं. वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो वही है, आज सॉल्ट नहीं चले, नारायण नहीं चले. चेन से मुझे याद आया, एक सवाल है दोनों के लिए, और मेरे जहन में सिर्फ दो जवाब हैं उसके. आज इम्पैक्ट सब रोहित शर्मा था. Now there are two reasons I think it should be. One, maybe, touch wood, I hope not. He might have a slight niggle, थोड़ा सा fatigue maybe. I'm not saying niggle, but थोड़ा सा fatigue. Second, शायद they're like, you know what, he's interfering a lot in the captaincy and this and that. I think you bat and that's your job, and I will sort of command the field and not have anyone buzzing around in my ear or someone not going to them. They have to come to me. Or maybe he अभी was तो कहाँ जाएगा नियल just वगैरह. deciding the team or हाँ. planning the team for the World Cup. Maybe he was too fatigued. वहां पे दिक्कत हुआ. या तो फिर ये हो सकता है कि आकाश मधवाल को पड़ी तो अब तो तेरे को सीधा मेरे पास आना पड़ेगा. अभी तो रोहित भैया नहीं है. देख, रोहित भैया वहां है. नहीं यार, देख, तो ऐसा कल्चर वो लोग हाँ. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फ्रेंचाइज ऐसा कल्चर नहीं ड्राइव करेगा. सब एसआरएच नहीं होते जहाँ पे डेविड वार्नर जैसा बिहेव हो जाए. सब फ्रेंचाइज ऐसे नहीं होते हैं. ठीक है, माइट भी उन्होंने इतना लंबा क्रिकेट खेला है, दैट्स रीजन ही प्रोबब्ली आस्क फॉर इट. यार टेस्ट मैच खेल के आ रहे हो 5-5, वो भी एक रीजन हो सकता है यार. बैक टू बैक कर रहे मेरे हो, को बुरा फिर आदमी आप बना दिया. फिर मेरे को फिर बुरा आदमी बना दिया. नहीं, सही बुरा है. आदमी नहीं है. देख, बुरा आदमी नहीं, फिर आप जाके कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हो, वहां पे इतने जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, कॉम्बिनेशन कैसे होगा, क्या करेंगे हम वहां पे. अरे मैच तो स्टार्ट होने दो. सही बोला उसने, मैच पहुंचने तो दो भाई. कॉम्बिनेशन अभी तुमको बना के दे दूं. ड्रीम 11 बनाने बैठा हूं मैं यहाँ पे लोगों का, कि ड्रीम 11 मैं तुमको बना के दे दूं भाई, ये प्लेयर खेलेंगे. समटाइम्स दे नीड यार, कुछ कभी कभी समझना चाहिए आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. ये तेरे लिए नहीं था, मैं जर्नलिस्ट के लिए बोल रहा हूँ. अच्छा, मेरे को लगा नहीं, भाई ये मैंने गलत सवाल पूछ लिया. मैं ऐसे ही It's not पूछ रहा about था यार. भाई लेकिन Not रोहित about शर्मा को ही ऐसे लोग सवाल क्यों पूछते हैं? वो वर्ल्ड कप से पहले उसको पूछा कि मतलब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ तो वो सुपर ओवर में ऐसा डिसाइड हुआ कि बाउंड्रीज के हिसाब से डिसाइड हो गया कि किसने सबसे ज्यादा मारा. तो आपको क्या लगता है कि वो सही है कि गलत है? तो रोहित शर्मा कहता है भाई मेरा काम नहीं है. तो उसी को क्यों ऐसे सवाल करते हैं ये लोग? उन लोग मतलब उसको एड़ा समझते हैं क्या ये लोग? हाँ, एड़ा नहीं समझ, उनको चाणा किक समझ मिलता उसको, है. चाणा. किक मिलता है, वो लोग को किक मिलता है ना. यही अरे रीजन है. उसने उस दिन बोल दिया था ना, साला चाबुक बैटिंग करता है, तो हंसने लगा. बोलता है यार साला वाला मत बोलो. और चाबुक हाँ. बैटिंग पे हंस रहा था. वो बोलता है क्या चाबुक बैटिंग करता है. वो मस्त फिगर है यार, मस्त चिल है वो एकदम. अपना काम करो, घर जाओ भाई. क्या सीन है मुंबई इंडियंस का? मतलब यार मुंबई इंडियंस का ही नहीं, ठीक है. गावस्कर को लेना है क्या नेक्स्ट ऑप्शन में? अभी टेबल तो ऐसा हो गया है ना, सब एक दूसरे का गला काटने पे लग गए हैं. देख, सिंपल सी बात है यार, कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता यार. सब अपने सारे फ्रेंचाइजी, सब लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो आके अब बिगाड़ देगा, अब तो ये 10 मैच हार देगा, अब लोगों का काम बिगाड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं. एवरीबडी इज प्लेइंग फॉर देयर ओन प्राइड यार. हम क्या पंजाब को क्या बोल रहे थे कि क्या खेल रही. नाउ दे हैव टेस्टेड द विन, अब वो अपने प्राइड के लिए खेलेंगे. उनको ठीक है, अभी वहां से वन फॉर द कैसा रिजल्ट. ऑडियंस, वन फॉर द ऑडियंस. एब्सोल्युटली यार, ऐसा नहीं होता कि हम स्पॉइल करने गए हैं गेम यार. किसको खराब लगेगा कि वो क्वेश्चन आंसर के घेरे में आके खड़े हो कि आपकी टीम ऐसा नहीं कर पाई, वैसा नहीं कर पाई. तो मेरे हिसाब से ये स्पॉइलर कुछ नहीं होता है. एवरीबडी इज प्लेइंग फॉर देयर रिस्पेक्ट द फ्रेंचाइज एंड रिस्पेक्ट देयर नेम. Everybody.
with everybody respecting their name, everyone. So with everyone respecting their name and respecting their franchise, tomorrow's match is the Royal Challengers Bangalore versus Gujarat Titans. Oh, can RCB qualify? Can they do an MI? भाई यार विल देख, जैक्स ने अच्छा किया, तुम्हारा रन रेट बढ़िया बढ़ा दिया हाँ, उसने। विल जैक्स ने एक 6 मैच में मिनट में खेल रन के रेट। फॉर्म में ले आए विल जैक्स को, फॉर्म में ले आए, वर्ल्ड कप के लिए फॉर्म में ले आए आरसीबी विल जैक्स को, अगले साल ड्रॉप। भाई बात ऐसी है ना कि रन रेट की तो बात ही नहीं हो रही। वी आर नॉट कीपिंग एनीथिंग जो हम रन रेट पे ध्यान दे रहे हो। जब मेगा टूर्नामेंट, मैं तो बहुत सिंपल होता है, मेगा टूर्नामेंट होता है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब मेगा टूर्नामेंट होता है ना, फिर वहां पे आप कितना सेंसिबल खेलते हो और कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, वो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। फिर ये रन रेट आपको आप, समझ में आ रहा है, आरसीबी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे अरे इंटरटेनमेंट थोड़ी ना चले जा रहा है, मैं मेगा टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ तो ये मेगा मेगा टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। ये मेगा भाई, टूर्नामेंट क्या है यार? भाई उन्होंने बोला ना कि तुम कैसे खेलते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये थोड़ी बोले अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। आप आरसीबी की तरह भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप क्या क्या आपको रिस्पॉन्ड करना है बस। रिस्पॉन्ड, सवाल पूछेगा जवाब तो आएगा ना, सही हो गलत हो। यस नो, यस नो। यस नो ट्रू फॉल्स, यस नो ट्रू फॉल्स। आरसीबी ने सही वो ब्रांड चुना है, बिग बास्केट। 10 मिनट में आओ, 10 मिनट में जाओ। चाहे वो अच्छा खेलो तो भी 10 मिनट, बुरा खेलो तो भी 10 मिनट। खुशी होगी। कल मैच का है, वो भी डिपेंड करता है कितना स्कोर बनेगा। चिन्न स्वामी। ये चिन्न स्वामी। शेयर मार्केट की जरा जो ये पता है रन का वो जो अ- अंबार था ना, वो ऐसा डाउन हो गया, कुछ कहने की बात नहीं। 200 रन मेरे को लग रहा है, हाँ, कब देखा मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, व्हेन आई सी, देखा, देख रहा है कि नहीं? वो आज तो शेयर फ्राइडे मार्केट था। डिप चल ट्यूसडे रहा की है। वजह से हुआ है। आज तो आज शेयर फ्राइडे था। मार्केट डिप चल रहा है। कल देख भाई, कल। कल, हाँ, कल चारों गेम, कल दोनों गेम 400 रन वाला, कल का गेम 400 रन, 100%, 100%। फिर बोलेंगे तो चिन्न स्वामी में इधर तो ऐसे ही होता है। अच्छा। अच्छा। बना रहे हैं भाई ये लोग खूब, और लोग बन रहे हैं खूब। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करता हूँ। एक प्लेयर है विल पकोस्की करके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, और एक टाइम पे उसको ना राइजिंग स्टार बोलते थे, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। उसने अपने करियर में 14 कंकशंस खाए हैं भाई, 14। उसका पहला कंकशन 15 या 16 साल की उम्र में आया। फिर वो फर्स्ट क्लास डेब्यू से पहले 4 कंकशन खाया। उसके बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू में कंकशन हुआ, लेकिन इस बार फील्डिंग कर रहा था वो, उसको सर पे बॉल लगा। ठीक है, 2017 से लेके 2021 तक 4 और कंकशन। फिर वो 1 साल का ब्रेक लेता है क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया बिकॉज ऑफ कंकशन सिम्टम्स। ओके, देन ही मेक्स अ कमबैक, ही गेट्स अनदर कंकशन, and now he's got another concussion. That means there are 14 concussions in the player's body. And when asked what are you going to do about it, Bolta, I can't do anything about it. I'm only trying to figure out that because of this concussion, why did I behave the way I behaved? And the most interesting part is you want to go through injuries, you want to take care of yourself when you're injured, but this is something that's not in your control. And he's just 26 years old. And his concussions are in Australia, जहाँ पे 140 150 में फास्ट बॉलर ही डाल बॉल, रहे हैं 50 60 ओवर 90 में से। आई आई ये फॉर द वो मूवी देखी विल स्मिथ की कंकशन, जिसमें वो रग्बी का एक दिखाता है कि रग्बी में बार बार चोट लगने से प्लेयर्स सुसाइड तक जा सकते थे। This sport also has this concussion side. Is just that in India we're not. I mean, we're careful about it, and our pitches are not that fast. But yeah, I think this should something that has to be taken very very seriously. 14 concussions, man. I know about That's big. यार 16. इसके I know इसीलिए about 16 concussions also. Tell me, tell me how. Sachin's concussion. 16 concussions. 16 बार कौन? हर साल कौन? आरसीबी फैंस। मेंटल हेल्थ Okay. यार I saw. 16 concussion. Because he बट should be स्टिल, happy he's not an Yeah, बट RCB fan. स्टिल, बट स्टिल हाँ क्या स्टिल वो बोलो। पता है, जैसे वो खड़ा होता है, और उसके सर पे बॉल sparkling. लगती है, पता है? हाँ लबुशेन के सर पे बॉल लगती है, हाँ तुरंत खड़ा हाँ, होता है। खड़ा होता है भाई वो। तो वैसा आरसीबी ओ है, वैसा बस आरसीबी फिर है। वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो जाता है। अगले वो टेस्ट अगले मैच मैच भी ड्रॉ कैसे हो खड़े? जाता है, जिताता नहीं है वो टेस्ट मैच ड्रॉ होता है। ठीक है।
ये और सुनो, वो आउट हो जाता है अभी थोड़ी देर जीत बाद। नहीं आई है, वो खड़ा होने के बाद भी अभी जीत नहीं आई है। नहीं, वो खड़ा यार होके बस आउट हो देखो, जाता है उसके बाद, और फिर ऐसा बैट देखो वैट फेंकता है, ऐसा आउट हो गया ये वो, मैं तो खड़ा हुआ था बाउंसर के सामने, बट तो फिर आगे भी खेलना था भाई, मतलब नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे। वही मैं बोल रहा हूँ, खड़ा होना ठीक है, उसके बाद उसको समझा ही नहीं होगा उसके साथ क्या हुआ, अंधेरा छा गया होगा एक टाइम पे। भाई चलो जोफ्रा आज लेट्स तो यार। यार, इन्होंने जोफ्रा, मेरे को क्या पता लगता है, एक चीज मैंने पकड़ी है बस, सही पता है, अगर हमें हमारे फास्ट बॉलर्स और कुछ प्लेयर्स को बचाना है ना बहुत टाइम तक, तो एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह ना सिलेक्टेड रेड बॉल क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहिए। जेम्स एंडरसन एट द एज ऑफ 40 इज प्लेइंग बिकॉज ही इज ओनली प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट, एंड बाकी वो जो अपने शोज वगैरह करता है वो बाकी, मतलब आई, पता नहीं, आई एम नॉट सेइंग जसप्रीत बुमराह इज नॉट फिट, बट या वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ दीस प्लेयर्स। यार एंड में तो यार टेस्ट मैच जीतने का मजा अलग है ना यार, आप चाहे वर्ल्ड T20 ही जीत लो। बट यार वो 2007 में पर्सन टू, वर्ल्ड, यार आप हाँ किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना बोल सकते हो। वीरेंद्र सहवाग के जैसा थोड़ी ना है कि मेरे को तो बैठा दिया, मेरे को बोल रहे हैं तुम रिटायरमेंट ले लो, ऐसा एलिगेशन आने लगता है यहाँ पे भाई। यार वो तो पर्सन चॉइस, इट्स अ पर्सन चॉइस, इफ मुझे आई लगता वांट है टू क्रिकबस पे परस्यू जो माय। जो आता है ना, हाँ अंकित, मुझे लगता है क्रिकबस पे जो आता है ना हिंदी में, वो आके हाँ एलिगेशन लगाता है, मैं माई बाई की वजह से नहीं खेला, मैं चीकू भाई की वजह से नहीं खेला, मैं इसकी वजह से नहीं खेला। मनोज तिवारी भी यही बोल रहा है, भाई, सहवाग भी यही हाँ बोल रहा है, हाँ, सबसे ज्यादा बाकी मनोज बोल रहा तिवारी है बोलता मेरे है तो उसको मेरे बहुत। को यही समझ नहीं आ रहा मैं ब्लेम किसको करूँ। कितना लोग था मेरे मनोज उसमें। तिवारी तो भाई, मनोज तिवारी का अनलकी था यार, काफी काफी अनलकी था। यार जगह ही नहीं थी ना भाई, जगह नहीं थी, नंबर वन हम्म स्पॉट चला गया था जिसपे उसको खेलना था। हम्म। नंबर 3 स्पॉट, भाई को नंबर नंबर 3 थ्री स्पॉट, काइल स्पॉट सॉरी, जेमिसन, बिकॉज ही सेड, काइल जेमिसन को देख लो। because रेड he बॉल। said that he could have probably scored a faster century than what Virat did in that CB series जब उसने मलिंगा को मारा था। और उसने ये भी बोला है ऑन एयर कि उसमें उस वाले सीरीज में ना विराट का 100 आया ना रोहित का 100 आया, और दोनों का 100 मैंने देखा उसके बाद, उस कमेंट के बाद जाके उसी सीरीज में आया है उन लोगों का 100। अरे वो क्या ऐसी ही कुछ भी, देख, चलता है ये यार, तो ये सब ताला के थोड़ा नाम फन पे होना चाहिए। लाइमलाइट ले रहे ना, ठीक नहीं है दोनों लिए, ताला के नाम पे लाइमलाइट लेना ठीक नहीं है, ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, थाला को क्रेड की एड में आना चाहिए, क्रेड, पे क्रेडिट ऑन द गो, क्रेड ऐप। चलो, great. Lovely speaking to you, boys. It's always a pleasure. We have reached above 6,000 followers on Instagram. We want to grow on YouTube. That's our final goal because that's more like a test match. So please like, share, subscribe on YouTube. We're also on X, Facebook, and thank you for your lovely comments. We've received some good, some bad, some not so good comments, but that's all right. Till then, have a good day and see you during the next match. Thank you very much. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।